Good morning student. Once again welcome back in maths class. Today we will start revision of chapter 3, that is factors and multiple. Okay. So today we will revise factors. Subtopics are there: factors, properties of factors, test of divisibility, prime factorization and highest common factor. In short we call it HCF. That we have to revise today. So first of all, what is factor? Factor is a number which divides the another number exactly without leaving any remainder. कोई भी मतलब remainder हमारे पास नहीं बचता. The number which divide the another number exactly. For example, if we have 15 divided by 3. So when 15 divided by 3, so we get the quotient 5. 3 5s are 15. 15 divided by 3. 3 5s are 15. So 5 is our quotient. Okay. So quotient is 5. So and if we do 15 divided by 5, so we get the quotient 3 because 5 3s are 15 and we are not having any remainder. So that means 3 and 5 both are dividing 15 without leaving any remainder. So that's why 5 and 3 both are the factors of 15. Okay. So these are the factors of 15. So factors. What are the factors? A number which divide another number exactly without leaving any remainder. Okay. So factors are always start from 1 and the last factor is number itself. Okay. That means factor always lies between 1 and number itself. इनके बीच में ही होते हैं. First factor 1 होता है because in one table you know every numbers come. 1 की जो टेबल है उसमें सारे नंबर आते हैं. That means जो 1 है वो सभी नंबर को exactly divide करता है. So that means 1 is the factor of every number. And that is the 1 is the smallest factor of the number. Okay. सबसे smallest factor होता है 1. These are the properties of factor. ये factors की property होती है क्योंकि जब हम किसी भी नंबर को, जैसे हमारे पास है 20 divided by 1, so we get 20 because all numbers are divisible by 1. So 1 will be the factors of every number. So 1 is the smallest factor of the number. And every numbers come in itself table also. जो सब नंबर होते हैं वो सभी नंबर अपनी टेबल में तो आते ही हैं. जैसे 20 divided by 20. So 21s are 20. That means every number is divisible by itself also. So itself is also factor of every number. Okay, number itself is also factor and itself is the highest factor. जो सबसे बड़ा factor होता है वो number itself होता है और smallest factor होता है वो 1 होता है. This is the properties of factor. ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 1 is the smallest factor of every number and number itself is the highest factor of every number. और जो other factors हैं वो इनके बीच में ही lie करते हैं. Okay? जैसे 20 है, 22 की टेबल में आता है. 20 किस किस की टेबल में आता है? 1 2 3 4 5 after 5 in 10 and 20. जो 20 है वो आपके पास इन सब की टेबल में आता है. That means these are the factors of 20 because factor is the number which divides another number exactly. तो यही ऐसे नंबर है जो 20 को exactly divide करते हैं. इसके अलावा 20 से बड़े नंबर तो 20 को डिवाइड करेंगे ही नहीं. अगर आप 21 लेते हो 21 की टेबल में तो 20 आएगा ही नहीं. So factors are not greater than the number, always equal to and less than the number. Okay. तो जो 20 के factors होंगे वो आपके पास ये होंगे. So first factor हो गया 1 and last factor is number itself. इसके अलावा जो factors है वो इनके बीच में ही lie कर रहे हैं आपके पास. Okay. So after that we are talking about test of divisibility. So where we apply test of divisibility? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास कि जब हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं किसी भी नंबर्स का, हमें चेक करना है कि दिस इज द फैक्टर और नो. सो बाय द शॉर्ट वे
we can check that it is divisible by 2, 3 or not. जैसे बड़े बड़े numbers हैं उनको हम divide करके देखते हैं. We take lot of time. So for saving our time we use divisibility test. टाइम को सेव करता है. जो आपका divisibility test है उससे आपका जो टाइम है वो कम कंज्यूम होता है. टाइम आपका सेव हो जाता है. हाउ इट सेव? जैसे आपको कोई भी बिग सा नंबर है, जैसे कोई भी नंबर, आप मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया आपका 85,290. ओके, अब आपके पास इतने बड़े नंबर है. अब आपको मैं आपसे पूछूं कि इट इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, क्योंकि हम जब फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमें बताना होगा कि ये 2 की टेबल में आएगा यानी 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर और नॉट. तो उसके लिए हम क्या करके देखें, इसको डिवाइड करके देखें, एंड दैट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम. सो इट्स बेटर इफ वी नो द डिविजिबिलिटी रूल, सो डायरेक्टली वी कैन टेल दैट दिस इज द फैक्टर ऑफ 2 और नॉट. ये 2 की टेबल में आएगा या नहीं आएगा, दिस इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट. फॉर दैट व्हाट वी चेक वंस कॉलम. At the place of division, directly we can tell we should check only ones column. In ones column, if we have 0, 2, 4, 6, 8, अगर इनमें से हमारे पास कोई भी, that means even numbers, all are even numbers divisible by 2. जितने भी even numbers हैं वो आपके 2 से divisible हैं. तो हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास वंस के कॉलम में इनमें से कोई डिजिट है, दैट मीन्स दैट इज डिविजिबल बाय 2. सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. ओके, दिस इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2. उसके बाद आपके पास आता है 3. आफ्टर 2 वी हैव 3. फॉर 3 व्हाट वी डू, अब हमें कोई भी नंबर चेक करना है कि 3 की टेबल में आएगा या नहीं आएगा. सो फॉर दैट वी यूज द डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 3. 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है? सम ऑफ द डिजिट्स. सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स का सम. जो नंबर है उसके हम डिजिट्स का क्या करें? सम. इफ द सम कम इन 3 टेबल, दैट मीन्स द नंबर विल कम इन द 3 टेबल. तो अब हम यहाँ पे डिजिट्स का सम करते हैं. हमारे पास है 8 + 5 + 2 + 9 + 0. Now we add them. 8 + 5 13, 13 + 2 15, 15 + 9 24, and 24 + 0 that's 24. Now the sum is 24. As we know 24 come in 3 table, so that means the number also come in 3 table. जो sum, if the sum is divisible by 3, जो आपका sum है वो अगर 3 से divisible है, so the number is also divisible by 3. So this is the rule of divisibility by 3. After that you have divisibility by 5. Okay? हम जो है प्राइम नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स देख रहे हैं. अभी कुछ कंपोजिट नंबर्स के बताऊंगी मैं आपको. मेनली हम किससे करते हैं? 2, 3 देन 5. तो 5 के लिए हमारे पास क्या होता है? फॉर 5 ऑल्सो वी चेक वंस कॉलम. ओके, जैसे हम 2 के लिए वंस का कॉलम चेक करते हैं, सेम एज फॉर 5 ऑल्सो वी चेक वंस कॉलम. If in ones column we have 0 and 5, अगर हमारे पास वंस के कॉलम में 0 and 5 है, that means the number is divisible by 5. क्योंकि आप देखो 5 की टेबल आप बोलोगे तो हमारे पास वंस के कॉलम में या तो 0 आती है या फिर 5 आता है. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20. तो आपके पास अगेन क्या है? 0 5 0 5 0 5. That means if you have in ones column 0 और 5, 0 और 5 में से कोई भी है, so that means the number is divisible by 5. So here is in ones column we have 0, that means this is divisible by 5 also. तो अभी 2 से भी हो गया, 3 से भी हो गया, 5 से भी हो गया. After that we check by 6. 6 का रूल क्या होता है हमारे पास? If a number come in 2 and 3 table, अगर कोई नंबर 2 और 3 बोथ से डिविजिबल है तो वो 6 से भी है. अब ये आपके पास क्या है? ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो. अब ये 6 से भी हो जाएगा, बिकॉज 2 3s are 6, so this number is divisible by 6 also. Okay? After 6 we should learn divisibility rules of 9. 9 का रूल सेम एज द रूल ऑफ 3. जैसे 3 का जो रूल है
सेम वही आपका 9 का रूल है, सम ऑफ द डिजिट्स। 9 के लिए भी हम डिजिट्स का क्या करते हैं, सम। अगर डिजिट का सम 9 की टेबल में आता है, दैट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। सो हियर सम ऑफ द डिजिट इज 24 एंड एज वी नो 24 नॉट कम इन द 9 टेबल। जो 24 है वो 9 की टेबल में नहीं आता, दैट मीन्स दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ओके, जब 24 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 24 not come in 9 table, so 24 is not divisible by 9. ओके, अब ये 9 से नॉट डिविजिबल हो गया, 9 से नॉट। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज 10। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट जो है वो कौन सा आता है, 10। 10 का रूल आपके पास क्या है, वही हमें वंस का कॉलम चेक करना है। तो देखो मेनली हमारे पास क्या है, हमें या तो वंस का कॉलम चेक करना है या फिर सम ऑफ द डिजिट। वंस का कॉलम किसके लिए हम चेक करते हैं, हम चेक करते हैं वंस का कॉलम 2 5 एंड 10। 2 5 10 के लिए वंस का कॉलम चेक करते हैं एंड 3 और 9 के लिए सम ऑफ द डिजिट्स। ओके, तो अब 10 के लिए आप देखो 10 की जो टेबल होती है 10 20 30 40 क्या होता है हमारे पास, ओनली वंस कॉलम क्या होता है, 0। तो हमें वंस का कॉलम चेक करना है। इफ आवर वंस कॉलम इज 0 दैट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 10। तो अब 0 से तो हमारे पास क्या हो गया, अगर हमारा वंस का कॉलम 0 है तो वो 2 से भी डिविजिबल है, 5 ऑल्सो एंड 10 ऑल्सो। ओके, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10 ऑल्सो। आफ्टर दैट नाउ देयर कम 11। 11 का जो रूल है वो थोड़ा सा आपका डिफरेंट है। ओके, 2 5 और 10 का सेम था, 3 और 9 का सेम है, बट जो आपका 11 का है दैट्स डिफरेंट फ्रॉम दीज। हाउ इट्स डिफरेंट, 11 में हम क्या करते हैं, सम ऑफ द ओड एंड इवन प्लेसेस। हम क्या करते हैं, ओड और इवन प्लेसेस का सम करते हैं। मीन्स यहाँ से हम 1 1 कॉलम स्किप करके और डिजिट्स का सम करते हैं। ओके, फर्स्ट प्लेस क्या होता है आपका, ओड, देन इवन, बिकॉज 1 इज ओड 2 इवन। तो हम यहाँ से देखते हैं जो ओड प्लेसेस है, 1 ओड, 3rd ओड एंड 5th ओड। 1 1 प्लेस को स्किप करके हम उनका सम करते हैं। ओके, ओके, सम ऑफ द ओड प्लेसेस एंड सम ऑफ द इवन प्लेसेस। अब हम सम ऑफ द ओड प्लेसेस करते हैं। ओड प्लेसेस का सम क्या हो गया हमारे पास, 0 + 2 + 8। So 8 + 2 10, 10 + 0 10. Now we will do sum of the even places. अब even पे हमारे पास क्या है, 9 and 5. Okay, 1 1 आपको प्लेस को स्किप करना है and then we have to add. So 9 + 5. 9 + 5 is 14. Okay. So now you will see after doing addition of these, आपको ओड और इवन प्लेसेस का सम करने के बाद क्या करना है, यू हैव टू फाइंड देयर डिफरेंस। आप इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो नाउ वी फाइंड देयर डिफरेंस, 14 - 10, सो दैट्स इक्वल्स टू 4। अब ये जो डिफरेंस है, इफ दिस डिफरेंस इज 0 एंड मल्टीपल ऑफ 11, या तो ये 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल, मतलब 11 की टेबल का नंबर है। मल्टीपल ऑफ 11 मीन्स क्या होता है, 11 22 33 44 11 की टेबल के नंबर। अगर वो डिफरेंस है दैट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 11, अदरवाइज नॉट। तो आपको रूल्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, यू हैव टू डू सम ऑफ द ओड प्लेसेस, मीन्स 1 1 कॉलम स्किप करके आपको डिजिट्स का सम करना है, एंड सम ऑफ द इवन प्लेसेस, then you have to find their difference. If difference is 0 and multiple of 11, that means the number is divisible by 11, otherwise not. This is the rule of divisibility 11. तो ये rules भी आपको learn करने हैं। By that rules you have to check the number is divisible by or not. After that we come on our next topic, prime factorization. So before prime factorization, you have to know what are the prime numbers and what are the composite numbers. Prime numbers कौन से होते हैं and what are the composite numbers. Composite numbers आपके पास कौन से होते हैं? Okay. So prime numbers, अभी जैसे मैंने फैक्टर्स की बात की थी, फैक्टर्स आपको बताए थे कि फैक्टर्स क्या होते हैं आपके पास, जो एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं अनदर नंबर को।
तो आपके पास प्राइम फैक्टर्स और कंपोजिट फैक्टर्स, टू टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं। प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो आपके पास जिस नंबर्स के सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं, सॉरी प्राइम फैक्टर्स नहीं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिसके सिर्फ, जैसे आपके पास है टू के जो है आपके पास ओनली टू ही फैक्टर्स हैं, टू। ओके, टू के टू ही फैक्टर्स हैं, कौन कौन से? 1 एंड 2। जो 2 है वो 1 और 2 की टेबल में ही आता है। दैट मीन्स 2 इज योर प्राइम नंबर। ओके, द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिसके सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं, दैट इज द प्राइम नंबर। ओके, एंड द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल 6 किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में तो सभी आएंगे ही आएंगे। उसके बाद 6 जो है वो 2 की टेबल में भी आता है, देन 3 ऑल्सो, देन 6 ऑल्सो। दैट मीन्स दिस इज द कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स, 1 और इटसेल्फ तो थी, उसके अलावा इसके 2 मोर फैक्टर्स आर देयर, सो दैट मीन्स दिस इज द कंपोजिट नंबर। ओके, so if a number have only two factors, that is the prime number, and if a number have more than two factors, 2 से ज्यादा, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो, बट 2 से ज्यादा होने चाहिए। अगर 2 से ज्यादा है, that means that is the composite number. Okay, so that means 6 is the composite number. 3 देखो, 3 किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में और 3 में, that means 3 is also a prime number. 4 आपके पास किस में आता है? 1, 2, 4। अब देखो 4 जो है वो 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है। सो दैट मीन्स अब देखो 1 और 4 के अलावा 2 भी इसका फैक्टर हो गया। दैट मीन्स दिस इज द कंपोजिट नंबर। ओके, अब आपके पास आता है 1 के देखो कितने फैक्टर? ओनली 1, तो 1 की टेबल में आता है। दैट मीन्स 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो ये प्राइम की कंडीशन को पूरा कर रहा है, ना ये कंपोजिट की कंडीशन को पूरा कर रहा है। दैट मीन्स इट इज अ यूनिक नंबर। इसे हम बोलते हैं कि ये यूनिक नंबर है, ये नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ना तो प्राइम की कंडीशन को पूरा करता है, ना ये कंपोजिट की कंडीशन को पूरा कर रहा है। तो दैट मीन्स जो आपका प्राइम नंबर है वो कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। द फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज 3, देन 4 कंपोजिट है आपका, 4 कंपोजिट में आ जाता है आपका, 5 फिर से प्राइम में आ जाता है, 6 कंपोजिट, 7 प्राइम, 8 कंपोजिट, 9 ऑल्सो कंपोजिट बिकॉज 9 कम्स इन 1, 3 and 9 टेबल. ओके, देन 10 ऑल्सो कंपोजिट. आपके जितने भी इवन नंबर्स है ऑल आर द कंपोजिट एक्सेप्ट 2. 2 को छोड़ के जितने भी इवन नंबर है वो सारे कैसे हैं आपके कंपोजिट, क्योंकि वो सारे 2 की टेबल में तो आएंगे ही आएंगे. दैट मीन्स दीज आर द कंपोजिट एक्सेप्ट 2. 2 को छोड़ के जितने भी आपके इवन नंबर्स है ऑल आर द कंपोजिट. सिर्फ 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो आपका कैसा है प्राइम. उसके अलावा सारे प्राइम नंबर आपके ओड होंगे, इवन में नहीं होंगे. ओके, सो नेक्स्ट, so I hope you get prime and composite number. Then after that there is prime factorization. जो prime factorization होता है उसके 2 methods हैं आपके पास. One method is tree method and second is division method. Mostly we apply division method, but you know the tree method also. ट्री मेथड से हम कैसे निकालते हैं? जैसे हमें नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने हैं. फॉर एग्जांपल हमें 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं. हाउ वी विल डू? 20 हमने लिया. ओके, अब हम ट्री मेथड से कैसे करते हैं? ट्री की जैसे हमारे पास 2 ब्रांच निकलती है, जैसे ट्री में ब्रांचेस निकलती है ऐसे ट्री मेथड में आपके पास क्या निकलती है? ब्रांचेस. अब हम इसकी 2 ब्रांचेस निकालेंगे. वन साइड में हम प्राइम नंबर लेंगे, प्राइम नंबर वाली ब्रांच वहीं पे खत्म हो जाती है, और वन साइड में कंपोजिट. अगर सेकंड साइड में भी आपका प्राइम आ जाता है दैट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन इज फिनिश. ओके, तो अब यहाँ पे हमें पता है 20 कम्स इन 2 टेबल, तो हमने यहाँ पे 2 प्राइम नंबर ले लिया. ओके, नाउ इन 2 टेबल वेयर कम 20 ऑन 10 नंबर्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 20.
Now 10 is a composite number and 2 is a prime number. तो ये ब्रांच आपकी यहीं फिनिश हो गई. 10 वाली ब्रांच जो है वो फिर से इंक्रीज होगी. यहाँ पे फिर से आपके 2 पार्ट्स निकलेंगे. अब 10 किसके अगेन इट्स कम इन 2 टेबल, so we'll take here 2 in 2 table where it's come on the 5 number. 2 5s are 10. Now we will see that 2 and 5 both are the primes. That means our prime factorization is finished. जब आपके लास्ट में both branches prime आ जाए, that it is finished. फिर आपको इसमें 1 नहीं लेके आना. Some student what they do 1 into 5, so that is wrong. जो आप 1 into 5 ये करते हो that is wrong. आपको इसको आगे नहीं बढ़ाना. When your prime numbers come, then it is finished. Okay? So prime factorization of 20 is 20 equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 5. Okay? 2 into 2 into 5. That is the prime factorization of 20. Same अगर हम इसको डिवीजन मेथड से निकालते तो भी हमारा सेम आंसर आएगा. देखो 20. Now 20 comes in 2 table, so we'll take here 2. हम हमेशा डिवीजन मेथड से जब हम करते हैं, so here we take always prime numbers. So first prime number is 2. अगर ये नंबर आपका 2 से डिवाइड होता है तो we will take here 2. When it's not divided by 2, then we will take on 3. अगर 3 से भी नहीं होता तो फिर हम 5 से चेक करते हैं, then 7, then 11, then 13. Like this we have to check. So we'll see it's coming 2 tables, so we'll take here 2. Now in 2 table where it's come, 2 ones are 2 and 2 zeros are 0, means 2 tens are 20. Again 10 come in 2 table, so again we will take here 2. 2 5s are 10. Now if we want to leave here, we can leave here also. अगर हम यहाँ पे छोड़ते तो हमें क्या करना होगा, 2 into 2 into 5 इस नंबर को भी लेना है. और लास्ट में अगर if we are taking here 1, अगर लास्ट में हम 1 लाना चाहे तो again we can take this is 5 is the prime number and it will come only in the 5 table. So we take here 5. 5 ones are 5. Okay. So now in last we have here 1. So now no need to take this one because any number multiply by 1 then number itself. तो हम क्या लेंगे, वो ये आपके पास आ गया 2 multiply by 2 multiply by 5. The same we get by the tree method also. Same one. आप किसी भी मेथड से निकालो आपके प्राइम फैक्टराइजेशन सेम आएंगे. Okay. And one thing more, when we multiply these prime factors, so that product is equals to the number. ये प्रोडक्ट आपका नंबर के इक्वल आना चाहिए. That then your prime factorization is correct. Otherwise your prime factorization is wrong. Now 5 2s are 10, 10 2s are 20. That means your prime factorization is correct. So that's equals to the number. So like this you have to find the prime factorization. Now next is highest common factor HCF. HCF हम कैसे निकालते हैं? HCF के भी हमारे पास 3 methods are there. हमारे पास कितने methods हैं? 3. One method है आपके पास, that is factors method. Second is prime factorization method and third is division method. जो HCF फाइंड करने के 3 methods हैं, factor method, prime factorization method and division method. अब factors method में आपके पास क्या होता है कि हम सारे factors निकालें. For example, I am taking here यहाँ पे मैं ले लेती हूँ आपके पास 15 and 20. Okay? मैंने आपके यहाँ पे 2 numbers ले ली 15 and 20. अब 15 और 20 के हमने क्या निकालने हैं? Factors. तो अब सबसे पहले तो आप फैक्टर मेथड से हम इसका HCF निकालेंगे. ओके. तो 15 के फैक्टर्स निकालेंगे हम. 15 किसकी टेबल में आता है हमारे पास? 15 कम्स इन 1 टेबल. अब 2 की टेबल में नहीं आता बिकॉज 2 7s are 14 and 2 8s are 16. 15 not come. So we'll take 3. 3 5s are 15. That means it's come in 3 table. Then after that it come in 5 table and after 5 it's come in 15 table. Okay. Then now we find factors of 20. 20 किसकी टेबल में आता है? प्राइम फैक्टर नहीं निकालने, अभी तो मैंने प्राइम फैक्टर निकाले थे इससे पहले. Now we have to find factors. फैक्टर्स में हमें और फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं. तो अब आप देखो फैक्टर्स फाइंड करते हैं. 20 come in 1 table, 20 come in 2 table also. After that 20 not come in 3 table. In 4 table it's come. 4 5s are 20. Then in 5 table also.
then in 6 it's not come, in 7 also not come, in 8 also, 9 also it's come in 10 table, 10 to jar 20, and after that it's come in 20 table. ओके, फैक्टर्स निकालने का मैंने आपको मेथड बताया था कि आप स्टार्ट कर दो, कि आप जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे निकालेंगे, कि 20 को आप 2 से, सबसे पहले तो 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, उसके बाद आप 2 से डिवाइड करके देखो, अगर आपका रिमाइंडर 0 होता है दैट मींस दैट इज द फैक्टर ऑफ 20, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, और आपको रिवर्स का पता चल जाता है, जैसे आपने 5 से किया, अब यहाँ पे रिवर्स का कैसे पता चल गया, हमने 20 को 4 से डिवाइड किया, 20 डिवाइडेड बाई 4, 4 की टेबल में कहाँ पे आया, 4 5 आर 20, और अब 4 के बाद हमारे पास टर्न आती है 5 से चेक करने की, एंड 5 इज ऑलरेडी इन द क्वोशिएंट, दैट मीन्स आवर ऑल फैक्टर्स फिनिश, दैट मीन्स अब रिवर्स ही स्टार्ट होगा, तो इस वजह से आप ऑल फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो। ओके, दैट आई एक्सप्लेन प्रीवियसली ऑल्सो। ओके, सो यू कैन सी द चैप्टर वीडियो इफ यू फॉरगेट दैट। सो चैप्टर में जो मैंने आपको इस एक्सरसाइज की जो वीडियो कराई थी उसमें भी आप देख सकते हो। सो नाउ हाउ विल फाइंड HCF, पहले तो हमने फैक्टर्स निकालने हैं, और अब हम क्या निकालेंगे, इनके कॉमन फैक्टर्स। नाउ व्हिच इज कॉमन हियर, 1, देन 5, ओनली 1 and 5 इज कॉमन फ्रॉम हियर, तो अब इसके बाद हमें निकालना होता है कॉमन फैक्टर, CF, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स आर 1 and 5। अब कॉमन फैक्टर में बड़ा कौन सा है, व्हिच इज द हाईएस्ट, क्योंकि हमें फाइंड करना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। तो HCF क्या होता है, द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो भी गिवन नंबर है उनको एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो अब हम हमारा यहाँ से हाईएस्ट नंबर कौन सा निकला, 5, HCF इक्वल्स टू 5। अब हमारा 5 सबसे बिग ऐसा नंबर है जो 15 और 20 बोथ को डिवाइड करेगा, 5 से बिग कोई नहीं है। 5 से बिग आप कोई भी नंबर आप देखो उसकी, जैसे 5 से बिग आप 6, 7, 8 कोई भी नंबर आप देखोगे तो उसकी टेबल में 15 और 20 बोथ नहीं आएंगे। तो HCF हमारा वो नंबर होता है दैट डिवाइड्स द बोथ नंबर एग्जैक्टली, बोथ 2 नंबर है या 3 नंबर या 4 नंबर, जितना का भी हम HCF फाइंड कर रहे हैं उन सभी नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा आपका HCF। ओके, और वो सबसे बड़ा नंबर होगा, डिवाइड तो 1 भी कर रहा है, और भी नंबर्स करेंगे, लेकिन जो HCF होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो इनको एग्जैक्टली डिवाइड करता है। ओके, अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करते हैं तो भी देखो हमारा सेम आंसर आएगा। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें 15 के, 15 किसकी टेबल में आता है, वही सेम 3, 3 5 आर 15, देन 5 1 आर 5। अब 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 20 कम्स इन 2 टेबल, 2 10s are 20, then 2 5s are 10, then 5 1s are 5. Okay, so we write here 15 equals to 3, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है दैट ऑलवेज बी राइट इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, जो ऑल फैक्टर्स होते हैं वो कॉमा लगा के राइट होता है, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलवेज राइट इन द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। नाउ 20 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, 2 multiplied by 2 multiplied by 5, that we always write in the multiplication form। अब आप इसमें कॉमन देखो, ओनली कॉमन क्या आपका 5, which are the common that we have to multiply। इसमें क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन जितने भी कॉमन होते हैं उन कॉमन्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स आवर HCF। सो HCF, अब यहाँ पे तो सिर्फ 5 ही कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, अगर कोई और होता तो हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ देयर इज ओनली 5 कॉमन, सो HCF इज 5। अगर इसके साथ कोई और कॉमन होता 2 या 3 तो हम उनको मल्टीप्लाई करके राइट करते हैं, एंड देन वी डू देयर मल्टीप्लिकेशन एंड दैट्स आवर HCF। तो आप किसी भी फॉर्म से राइट करोगे आपका आंसर सेम निकलेगा HCF। जैसे थर्ड मेथड आपका डिवीजन वन, अब डिवीजन से आप निकाल के देखो, इसका डिवीजन से भी सेम आंसर आएगा आपका, सेम नंबर का मैं डिवीजन से निकाल के दिखाती हूँ आपको। 15 और 20 है, डिवीजन में क्या होता है, जैसे 15 और 20 है आपके पास, बिग वन को हम क्या बनाते हैं डिविडेंड, और स्मॉल को डिवाइजर। तो अब 20 हमारा डिविडेंड बन जाएगा और 15 डिवाइजर। Now in 15 table, where is 20? We will take on the 1. 15 ones are 15. Okay. 20 minus 15, 5.
नाउ अगेन 15 विल बी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हमारा जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बनता जाएगा और जो रिमाइंडर है वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा जब तक कि वी आर नॉट गेटिंग द रिमाइंडर 0. सो नाउ 15 अगेन विल बी डिविडेंड and 5 will be divisor. In 5 table where is 15? 5 3s are 15. Now 15 minus 15, there is remainder 0. That means remainder 0 किसने दिया हमें? 5 ने. So 5 will be our HCF. So HCF equals to 5. So take care about that. अब देखो all condition में हमारा HCF same answer है. So हम किसी भी method से निकालते हैं, we get the same HCF. Okay? And HCF is the highest number which divides the given number exactly. जो given number है 2, 3, 4, 5 जितने भी नंबर का हम HCF फाइंड करें उन सब नंबर को exactly डिवाइड करेगा और वो सबसे बड़ा नंबर होगा, इससे बड़ा और कोई नंबर होगा नहीं. Okay? So like this you have to find HCF. So I hope you understand these all topics and revise them very well. Okay? Thank you.